बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ موبائل کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ اور اعصابی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح طلوع آفتاب سے قبل 20 منٹ پیدل چلنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ قوت یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے گناہوں کو ترک کر دیں۔ قوت مدافعت کو طاقتور بنانے کے لیے پانی زیادہ پئیں۔ قوت بصارت کو بہتر بنانے کے لیے عصمت سرما استعمال کریں۔ قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے کچا پیاز بطور سلاد کھائیں۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ سونف کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ اگر دانت صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کے فوراً بعد چائے بالکل نہ پئیں۔ کھجور کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلد منہ نہیں دیکھتا۔ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے جسم کے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی ہے۔ فرمایا، اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ جو میرا امتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھیں گی۔ گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ چاشت کی نماز پڑھتے رہو، تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ اے انس، چھوٹوں پر رحم کر، بڑوں کی عزت و توقیر کرو تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ پانی زیادہ پینے اور نیند پورا لینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی درختوں اور سبز چیزوں کو دیکھا کریں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے۔ غیر معیاری چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے تیز خوشبو زیادہ نقصان دہ ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 3 دن تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے اور چمکدار نظر آئیں گے۔ کھانا کھانے کے دوران موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ استغفار کی توفیق اور اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ سر کے بالوں میں ناریل کا تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو یا آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے، آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
है। मीठी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल चेहरे पर झुर्रियां लाता है। गन्ने के रस में अदरक मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करें, बदबू खत्म हो जाएगी। पानी उबाल कर पीने से मोटापा कभी नहीं आता। हर वक्त ज़हनी दबाव का शिकार रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है। दूध बगैर शुगर के सब्ज इलायची डालकर उबाल लें और फ्रीजर में ठंडा कर लें। उतना ठंडा करें कि बर्फ बनने वाला हो। रोजाना एक गिलास पीने से मैदे की तजाबियत, अल्सर और मैदे की जलन दूर हो जाती है। मैदे की जलन दूर हो जाएगी। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली खत्म हो जाती है। अगर बदन की सूजन का कोई भी मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाया करें, उससे बदन की सूजन में काफी आराम मिलता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द से आराम मिलता है। दांत हिलते हों या खराब हों तो नीम की मसवाक करें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह गया हो उनको दूध में खजूर डालकर जूस बनाकर दिया करें, उससे कद बढ़ने लगेगा। नहार मुंह फालसे का जूस पीने से मैदे की तजाबियत दूर हो जाती है। मीठी और गर्म चीजें खाने के बाद पानी पीना दांतों को खराब कर देता है। नींबू का रस चूस लिया करें, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। 3 चीजें हर एक इंसान की जुदा होती हैं, सूरत, सीरत और किस्मत। कान के अंदर खारिज का होना याददाश्त कम होने की अलामत है। जो लोग बहुत कम सोते हैं वो चिड़चिड़ेपन और ज़हनी दबाव के शिकार होते हैं और जो ज्यादा सोते हैं उनमें भूख का एहसास ज्यादा होता है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी खराब होते हैं। खजूर खाने से जिस्मानी सुस्ती दूर हो जाती है। सूखे धनिये की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। सफेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आता है। चॉकलेट ज्यादा खाने से रंग सांवला हो जाता है। लाल मिर्चों को जलाकर उनकी धुनी लेने से बंद नाक खुल जाता है। सिला रहमी यानी रिश्तेदारी पालने के फायदे। सिला रहमी से मोहब्बत बढ़ती है, माल बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, रिज़्क में कुशादगी होती है। आदमी बुरी मौत नहीं मरता, उससे मुसीबतें और आफतें ढलती रहती हैं। गुनाह माफ किए जाते हैं, जन्नत में जाने का इस्तेहकाक हासिल होता है। सब्जी को तरोताजा रखना है तो पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दें, सब्जी ज्यादा देर ताजा रहेगी। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। ज्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा खराब नहीं होता। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक होता है। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज्यादा हो और जिस्म टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँव का खूब मसाज करें, इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा। सब्ज रंग को गौर से देखा करें, नजर तेज होती है। कब्ज को खत्म करना है तो चाय के अंदर सूंड डालकर पी लिया करो, कब्ज खत्म हो जाएगी। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं, बाल काले हो जाएंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों के जिस्म पर मोटापा हावी हो जाए वो लोग कच्चा फालसा रोजाना खाया करें, उससे चंद दिनों में जिस्म की चर्बी पिघलने लगेगी और वजन कम होने लगेगा। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेजाब इस कदर तेज होता है कि वो स्टील को भी गला सकता है। नहार मुंह अस्बकोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। बेर खा लिया करें, ये दिल और हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए नहायत मददगार साबित होता है। अगर चाहते हैं कि पकौड़े ज्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त तेल ज्यादा गर्म होना चाहिए। खरबूजे के छिलके सुखाएं और उसे पीस कर रख लें। जब गोश्त जल्दी तैयार करना मकसूद हो तो उसमें से 1 चम्मच डाल दें, गोश्त जल्दी तैयार हो जाएगा। शाम को मीठी चीजें ना खाओ बल्कि कड़वी चीजें खाओ, उससे सेहत ठीक रहती है। नहार मुंह दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। लाल जीरा दूध के साथ खाएं, उससे जख्म जल्दी भरते हैं। इंसान वो मांगता है जो उसे अच्छा नजर आ रहा होता है, लेकिन अल्लाह उसे वो अता करता है जो उसके लिए अच्छा होता है। क्या आपको मालूम है ठंडे कमरे में सोने से वजन कम होने में मदद मिलती है। खट्टी चीजें ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। आटे में खीरे का पानी मिलाने से रोटी नरम बनती है। सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। सर में
चंबेली का तेल लगाएं, कभी सर में खुश्की नहीं होगी। अंगूर खा लिया करें, काली खांसी फौरन रुक जाएगी। नींबू का रस पानी में मिलाकर नहार मुंह पीने से मोटापा कम होता है। तोरी और शलजम मिलाकर खाने से कभी नमोनिया नहीं होता। दिल की नालियां साफ करनी हो तो चुकंदर को दही के साथ खाएं। बिनाई को बेहतरीन रखने वाली चंद गजाएं, खुश्क मेवा जात, मछली, गाजर और अंडे की जर्दी। अगर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है, उन औरतों को चाहिए कि शिमला मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करें, वजन में कमी आ जाएगी। पेशाब की इन्फेक्शन में फालसे का जूस पिया करें। जो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनको चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से ही आती हैं। नाजरीन, इमाम फखरुद्दीन रहमतुल्लाह गालिबन सूरा यूसुफ में एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि मैंने अपनी तमाम उम्र में यह तजर्बा हासिल किया है कि इंसान अपने किसी काम में जब गैर अल्लाह पर भरोसा करता है और इत्मीनान करता है तो वो उसके लिए मेहनत और मशक्कत और सख्ती का सबब बन जाता है, और जब अल्लाह ताला पर भरोसा करता है और मखलूक की तरफ निगाह नहीं करता तो वो काम जरूर बाजरूर नहायत हुस्न और खूबी के साथ पूरा हो जाता है। ये तजर्बा इब्तदाई उम्र से लेकर आज तक, जब के मेरी उम्र 57 साल की है, बराबर करता रहा, और अब मेरे दिल में ये बात रासख है कि इंसान के लिए वजज उसके चारा नहीं है कि अपने हर काम में अल्लाह ताला के फजलो करम और एहसान पर निगाह रखे और किसी दूसरी चीज पर हरगज भरोसा न करे। सुबह उठकर घास के ऊपर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो कभी उल्टा होकर ना सोएं। एक से ज्यादा समोसा, पकौड़ा या तली हुई चीज ना खाएं। खाने से पहले 2 गिलास पानी के पी जाएं। सलाद में खीरे का इस्तेमाल करें। हदीस मुबारका का महफूम है कि जना करने वाला जब जना करता है तो वो मोमन नहीं रहता। चोर जब चोरी करता है तो वो मोमन नहीं रहता। शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमन नहीं रहता। फिर भी इन सब लोगों के लिए रब्बे करीम की तरफ से तौबा का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो उसे और दुनिया दोनों को पा लेते हैं, और जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ दुनिया पा लेते हैं। जिंदगी भर हासदों के शर से बचना चाहते हैं तो 3 चीजें हमेशा राज रखें: आमदनी, मोहब्बत और अगला कदम। नाज़रीन कराम, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।